Hello dear students, most welcome to today's chemistry class. This is solid state part 2. In this class we will be discussing solid state and it is a continuous chapter. In the first class we had discussed that what are solids. There are two forces like your intermolecular forces and thermal energy. Because of these two forces where intermolecular force of attraction is high, then the substance exists in a solid state. And the intermolecular force of attraction are of three types: ionic force, covalent force and van der Waals force. In all these forces we have discussed that even substance can also exist in solid state. And there are two important things: intermolecular force of attraction and arrangement. These are the two primary requirements for any substance to exist in a solid state. Then we classified the solids as crystalline and amorphous. We discussed in detail about their characters. Then we classified the crystalline solid into four categories like ionic crystal, covalent, molecular and metallic, and also discussed their characters in detail. Then finally we discussed about unity cell. The purpose of studying unity cell is a small defined space or repeating unit which is repeated over and over again gives rise to the whole lattice, and lattice upon a repetition give you the crystal. That means all the properties of crystals are reflected in the unity cell, and the unity cell carries all the properties of the crystal. So it is the small defined space, ये smallest होना चाहिए, and second important condition is it must carry the properties of solids. ऐसा तो unity cell तो बहुत ही सारे भी हो सकते हैं, लेकिन good unity cell और selective unity cell is that one which carries all the properties of solids, और जिसके मदद से हम सारे के सारे क्रिस्टल का प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी जो सेकेंड क्लास में मैं कुछ वही बुक्स को कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ. अभी कोई भी किताब भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, टेक्स्ट बुक ब्यूरो भी पढ़ सकते हो, और VK केमिस्ट्री भी है, सेनगेज सीरीज भी हो, और तुम्हारे पास भी जैसे कि GRB, प्रदीप, ऐसे कुछ किताब भी है, आप भी मैं रेफर कर रहा हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंसेप्ट और बेसिक्स फंडामेंटल को क्लियर करना चाहिए. सॉलिड स्टेट बहुत ही आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर होना चाहिए. ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने पॉसिबल हो आपको अच्छी तरह से समझाऊँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद आप लोगों का सारे के सारे जो भी इमेजिनेशन पावर जरूर अच्छा ही होगा. ठीक है, देखो यूनिट सेल के बारे में तो मैंने बताया. पर्पस ऑफ स्टडिंग यूनिट सेल इज टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल. ये बात ध्यान में रहे कि यूनिट सेल सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ते हैं जो होल क्रिस्टल का प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए. इसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स, इतने सारे पार्टिकल्स है, इनका अरेंजमेंट के बारे में पता लगाना इतना आसान नहीं है. अगर हमने देखा कि वही रिपीट हो रहा है, कोई अरेंजमेंट अगर रिपीट हो रहा है, उसी अरेंजमेंट को उठा के हमने ले लिया, उसको ढंग से पढ़ लिया, कैसा अरेंजमेंट है उसके अंदर में, देन वी कैन स्टडी द होल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिट सेल के ऊपर में ज़्यादा फोकस करना. ठीक है, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ. ज़रा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, और साथ साथ भी लिखते जाना. क्या क्या पढ़ेंगे आज? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, हो सके टाइम मिलेगा तो पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में भी मैं आज चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा. टू डायमेंशनल सिस्टम में पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करूंगा. चलो बिना देर किए हुए, टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं. द यूनिट सेल तो मैंने बता दिया कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट व्हिच carries all the properties of crystals, and upon repetition give you lattice, and lattice upon repetition give you whole crystal, and the position of each atom is represented by a point. Position of each atom in the lattice is represented by a point, we call it a lattice point. वो point नहीं है, वो किसी atom का position है. ठीक है, अब डिस्कस करेंगे कि what are unit cells and what are its classification. यूनिट सेल के बारे में तो मैंने बता दिया. लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन. देखो जितने सारे यूनिट सेल है, दे आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज. यूनिट सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स. नॉर्मली और ब्रॉडली दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. नंबर और टू टाइप्स. नंबर वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव and non-primitive unit cells, primitive unit cell and non-primitive unit cells. ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है? देखो
प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब द यूनिट सेल, सपोज दिस इज ए यूनिट सेल. इन प्रिमिटिव यूनिट सेल द एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में है. देखो ये एक क्यूब है यूनिट सेल, मान लो क्यूबिक यूनिट सेल मैंने ले लिया, ठीक है. इट हैज 8 कॉर्नर्स. देखो द पार्टिकल्स और एटम्स, आयंस हो मॉलिक्यूल कुछ भी हो जिसमें वो बना हुआ है, वही सब पार्टिकल्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स. इफ ए यूनिट सेल कंटेन्स एटम्स or the molecules or ions particles present at corners, only at corners. देखो they are present only at corners, 8 corners. देखो ये रहा तुम्हारा एक, मान लो यूनिट सेल, ये रहा तुम्हारा एक यूनिट सेल है, 8 कॉर्नर से सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट है और कहीं पे नहीं है, तो उसको कहेंगे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल. जैसे कि तुम्हारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये रहा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC के नाम से उसको हम जानते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. नॉन प्रिमिटिव क्या है? नॉन प्रिमिटिव का मतलब 8 कॉर्नर में तो एटम्स रहेंगे ही रहेंगे, वो तो कंपलसरी है, उनको 8 कॉर्नर में तो रहना ही है. देखो 8 कॉर्नर्स में है, 8 कॉर्नर्स में है. इन एडिशन टू 8 कॉर्नर्स, देखो ध्यान से देखना, इफ दे आर प्रेजेंट इन सम अदर पोजिशंस, कॉर्नर को छोड़ के अगर कहीं दूसरे जगह पे है, जैसे ये रहा कॉर्नर, ये तो कंपलसरी, देखो इसमें तो रहना ही है. देखो ध्यान से देखना, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स इन एडिशन टू कॉर्नर्स इफ दे आर प्रेजेंट एट सम अदर पोजिशंस, लाइक अगर फेस सेंटर, देखो ये रहा फेस, उसका सेंटर ये रहा फेस, राइट साइड फेस, इसका सेंटर ये, और ये बॉटम वाला, ये देखो ये बॉटम वाला, उसका फेस सेंटर ये रहा. ये जो लेफ्ट साइड फेस, इसका सेंटर ये रहा. ये रहा सामना वाला फेस, इसका सेंटर आसपास यहीं पे कहीं पे होगा, और पिछले वाला फेस, उसका सेंटर यहीं पे. देखो हियर इन एडिशन टू 8 कॉर्नर्स 6 एटम्स आर आल्सो प्रेजेंट एट 6 फेस सेंटर्स, उसको कहते हैं FCC. नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में FCC होता है. और BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है? देखो एक मैंने एक यूनिट सेल बना लिया, क्यूबिक यूनिट सेल. देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे बातें सीखना है और समझना भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखो 8 कॉर्नर्स, प्रिमिटिव हो या नॉन प्रिमिटिव हो, 8 कॉर्नर में तो रहना कंपलसरी है. उसके बाद देखो ये रहा तुम्हारा क्यूब है, ठीक है. 8 कॉर्नर में 8 एटम्स हैं, और इसके जो होल बॉडी है ना, होल बॉडी देखो, इसका अंदर में बिल्कुल अंदर में 1 एटम इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर. देखो बॉडी सेंटर ये होगा, ये टोटल क्यूब का जो अंदर में जो बॉडी सेंटर, ये रहा बॉडी सेंटर. दूसरा रहा BCC. तीसरा थर्ड टाइप होगा क्या? एंड सेंटर्ड. क्या होगा? एंड सेंटर्ड मतलब इन एडिशन टू 8 कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल. देखो इन एडिशन टू दिस 8 कॉर्नर्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, 8 कॉर्नर में तो हो, ये तो कंपलसरी रहना ही है, ठीक है. इफ एटम्स आर प्रेजेंट ऑन एनी 2 ऑपोजिट फेस सेंटर्स, इफ एटम्स आर प्रेजेंट ऑन 2 ऑपोजिट फेस सेंटर्स, मान लो ये अपर, ये लोअर, ये फेस सेंटर ये होगा, कि भाई इस सामने वाला और पीछे वाला, कि भाई इसी साइड का फेस सेंटर ये वाला, इसी फेस सेंटर में एक एटम होगा, यहाँ पे एक एटम होगा. 8 कॉर्नर में तो है, उसको छोड़ के किसी 2 ऑपोजिट फेस ले लो. फेस तो 6 है, और ऊपर वाला नीचे वाला, ये बाएं वाला दाहिने वाला, और सामने वाला पीछे वाला, कोई भी 2 ऑपोजिट फेस ले लो. मान लो मैंने यहाँ पे ऊपर वाला ले लिया फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, उसको कहते हैं एंड सेंटर. दीज आर ऑल नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स. ठीक है, आई बात समझ में? मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्रिस्टल सिस्टम. देखो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ये रहा तुम्हारा सिंपल क्यूबिक. ठीक है, और नेक्स्ट देखो क्रिस्टल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो ये मालूम नहीं होता है कि वो बोर हो जाते हैं देखते ही,
मतलब कि कहते हैं कि ये कैसा है, इसको कैसे याद रखना, और रट्टा मारते हैं, इधर रट्टा मारते तो उधर भूल जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत ही तकलीफ होता है याद रखने के लिए। मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वो ट्रिक को भी समझना और याद भी रखना, साथ साथ काम चल जाएगा जिंदगी भर, वो आसान हो जाएगा, वो टॉपिक आसान हो जाएगा। देखो जितने सारी क्रिस्टल्स है ना, सारी की सारी क्रिस्टल्स, देयर आर 7 सिस्टम्स है, 7 सिस्टम्स, ठीक है। सारी क्रिस्टल का 7 सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि देखो क्रिस्टल सिस्टम, मैं एक टेबल बना रहा हूँ, क्रिस्टल सिस्टम। मान लो एक क्रिस्टल है, पहले एक क्रिस्टल में यहाँ पे बना लेता हूँ। एक क्रिस्टल है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक क्रिस्टल है, ठीक है, एक क्रिस्टल है, ठीक है। मान लो कोई भी क्रिस्टल हो सकता है। देखो ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये मान लो रहा तुम्हारा वाई एक्सिस, ये मान लो रहा तुम्हारा जेड एक्सिस, ठीक है, दिस इज जेड एक्सिस। एक्स डायरेक्शन में उसको हम लेंथ कहते हैं ए, वाई डायरेक्शन में इसी लेंथ को हम कहेंगे बी, ब्रेड्थ, और जेड डायरेक्शन में इसी हाइट को हम कहेंगे सी। आई बात समझ में? नेक्स्ट जो एंगल, ये जो फेस के बीच में जो एंगल है, इंटरफेशियल एंगल, देखो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया फेस ए बी, ठीक है, ए सी, उनके बीच में जो एंगल है उसको कहते हैं अल्फा। ए और बी के बीच में जो एंगल है उसको कहते हैं गामा, ध्यान से सुनना। और बी और सी के बीच में जो एंगल है उसको कहते हैं बीटा। देखो ए बी के बीच में जो एंगल है, दिस एंगल को देखो, उसको कहते हैं गामा, मैं थोड़ा रेड मार्क गामा। और तुम्हारा जो बी और सी के बीच में, देखो बी और सी के बीच में उसको कहते हैं हम बीटा। और ए और बी के बीच में देखो ये गामा, और ए और सी के बीच में इसको कहते हैं अल्फा। सो ऑल द क्रिस्टल सिस्टम्स दे आर डिफरेंशिएटेड बाय देयर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और अल्फा, बीटा, गामा। इसी से उनके बीच में फर्क आता है, अल्फा, बीटा, गामा, ए बी सी को लेके देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। और जितने सारे क्रिस्टल्स दुनिया में है, संसार में है, ये सारी सिस्टम, सारी की सारी क्रिस्टल्स किसी भी सिस्टम के अंदर में आते हैं, दे बिलोंग टू एनी ऑफ द सिस्टम। देखो कैसे याद रखना, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, क्रिस्टल सिस्टम, 7 सिस्टम्स। क्यूट, ऐसे लिखता हूँ, क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर, ऐसे याद रखना। क्रिस्टल क्यू मीन्स क्यूबिक, ध्यान से देखना, बहुत ट्रिक बता रहा हूँ। टी मीन्स टेट्रागोनल, क्यूट टेट्रागोनल। आवर मीन्स ऑर्थोरम्बिक, एमओ मीन्स मोनोक्लिनिक, टी मीन्स ट्राइक्लिनिक, एच मीन्स हेक्सागोनल, आर मीन्स रंबोहेड्रल, ठीक है। आगे क्यूट और मदर। नेक्स्ट ए बी सी, अल्फा, बीटा, गामा। देखो ए बी सी मीन्स फर्स्ट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और क्यूब के साथ लास्ट वाला बराबर है, मीन्स हियर भी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिख देना। और यहाँ पे एक एक अनइक्वल करते जाना, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, वही वाला इस यहाँ पे भी होगा, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यहाँ देखो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये इसके साथ ये बराबर होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ये भी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये लिखना। अल्फा, बीटा, गामा, देखो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका भी यही लिख देना, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ आ जाओ, यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और जो टेट्रागोनल ट्राइक्लिनिक है ना, ये बड़ा खतरनाक है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद हेक्सागोनल लिखना, हेक्सागोनल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इक्वल टू 120 डिग्री लिखना। और यहाँ पे
अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने बता दिया ये ट्रिक। और देखो कितने नंबर ऑफ ब्राविस लैटिस, 14 ब्राविस लैटिस। ब्राविस लैटिस क्या होता है जानते हो? किसके पास कितने नंबर की यूनिट सेल्स है, कितने नंबर की यूनिट सेल्स है। क्यूब के पास 3 नंबर की यूनिट सेल्स है, ऐसे टोटल 14 तुम्हारा जो ब्राविस लैटिस है। एक नंबर याद रख लेना 32, इसके पास 3 है ब्राविस लैटिस, इसके पास 3 2 4 2 111। देखो मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ समझने के लिए। 3 2 4 2 और 111 ऐसे याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये हो गया ना, मान लो कुछ भी एंट्रेंस आप फेस करोगे, यू विल have no problem in answering all these any questions that are likely to come from this ब्राविस लैटिस और क्रिस्टल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं बता दिया और याद भी रख लेना, देख लेना जो ट्रिक जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से लिखना और प्रैक्टिस करना। ओके, देखिए क्रिस्टल सिस्टम, ये रहा क्रिस्टल सिस्टम। अभी अभी मैंने बताया, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सब बातें आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जाएंगे, डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, उनके अंदर में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, very very important. This is represented by symbol Z. First, any primitive unit cell means a simple cubic unit cell. In simple cubic unit cell, देखो, in simple, this is primitive unit cell, and you know in primitive unit cell the particles are present only at corners, और atoms सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में है। देखो ये रहा तुम्हारा एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक रहा, यहाँ पे एक आटम, यहाँ पे एक आटम, यहाँ पे एक आटम, ये सारे के सारे एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स। मुझे बताइए, इट हैज 80 एटम्स प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर। क्या ये सारे के सारे एटम्स इसी यूनिट सेल का है? एक ही यूनिट सेल में देखो, ये यूनिट सेल है, ठीक है, 8 कॉर्नर में 8 एटम्स है। मेरा सवाल है कि ये 8 एटम्स डू दे बिलोंग एंटायरली टू दिस यूनिट सेल? ये सारे के सारे एटम क्या इसी यूनिट सेल का ही है? पूरा का पूरा हिस्सा यूनिट सेल का है? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि एक ही यूनिट सेल में क्रिस्टल नहीं है, यूनिट सेल तो रिपीट हो रहा है। देखो ध्यान से देखना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मीन्स 80 एटम्स आर प्रेजेंट एट 80 कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर में तो 8 एटम है ही, ऐसे कोई संदेह नहीं। लेकिन मेरा सवाल है कि एक ही यूनिट सेल में कितने एटम्स है? आप कहोगे सर 8 एटम्स थे कॉर्नर में। अरे भाई कॉर्नर में 8 एटम्स है, लेकिन इसका कितना है, कुल इसका हिस्सा कितना है? देखो यहाँ पे एक एटम है, देखो यहाँ पे एक एटम है, नजर करो। मान लो इसी पोर्शन ले लो, किसी भी एक पोर्शन में ले लेता हूँ। देखो एक पोर्शन में ले लेता हूँ छोटा सा, उसको मैं अलग कर देता हूँ। देखो ये पोर्शन मैंने लिया, ये देखो ये 1 2 3 4, इसी पोर्शन को नजर करो। देखो सपोज ये जो होल देख रहे हो ना, मान लो यहाँ पे एक एटम है, मान लो एक एटम है, ये मान लो ये जो 4 है ना, ये 4 कमरा है। 1 2 3 4, दीज आर 4 यूनिट सेल्स। ये एक एक क्यूब है, एक एक क्यूब है, ठीक है। इसमें देखो एक भर्ड है, दिखाई देता है ना, इसी भर्ड में एक एटम है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एटम है, दैट मीन्स दिस एटम इज शेयर्ड बाय दिस 4 क्यूब्स। इसका जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस में यहाँ पे अगर कोई एटम होगा, इसी बीच में जो छोटा सा होल है, दैट मीन्स दिस 4 क्यूब्स यूनिट सेल इसको शेयर कर रहे हैं। अगर मैं 4 और ऐसे उसके ऊपर में रख दूं, देखो फिर 4 क्यूब और 4 कमरा मान लो उसके ऊपर में उठा के रख दूं, तो इसी जगह में जो एक एटम था ना, अब तो 4 के द्वारा 4 के बीच में वो शेयरिंग हो रहा था। अब कितने के बीच में शेयरिंग होगा? 1 2 3 4, दैट मीन्स इट विल अगेन बी शेयर्ड बाय अनदर 4 क्यूब्स। दैट मीन्स ईच कॉर्नर एटम, ये बात याद रहे, ये दिखाई देता है यहाँ पे है, लेकिन इट डज नॉट बिलोंग एंटायरली टू दिस यूनिट सेल। कोने पे अगर कोई एटम है तो वो सारे के सारे एटम एक ही यूनिट सेल का नहीं है। दिस एटम इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, 8 यूनिट सेल उसको शेयरिंग कर रहे हैं। तो पर यूनिट सेल इट इज शेयर्ड बाय, देखो
इसी यूनिट में, इसी क्यूब के अंदर में इसका कितना हिस्सा अंदर में है, कितना हिस्सा होगा 1/8। अगर पूरी की पूरी आटम को 8 क्यूब्स शेयर कर रहे हैं तो पर क्यूब कितना होगा, वो इस क्यूब में के कोने में दिखाई देगा कि एक आटम है, लेकिन कितना हिस्सा अंदर में है, उसका कितना हिस्सा अंदर में है, इसी यूनिट सेल के अंदर में है 1/8। तो पर कर्नल आटम कंट्रीब्यूट्स 1/8, यहां से भी 1/8 होगा, यहां से भी 1/8। सो टोटल नंबर ऑफ आटम्स पर यूनिट सेल इज Z इक्वल टू 1/8 फ्रॉम ईच कर्नल, राइट, into there are 80 kernel atoms, there are 8 atoms at each kernel, so total is 1। दिखाई तो देता है 8, लेकिन सचमुच में उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आटम ही होता है, ठीक है। अगर कहूंगा कि देखो ये जो अगर एज लेंथ ए है, एज लेंथ क्यूब, अगर ये क्यूब है तो सारे की सारे एज लेंथ एक ही जैसा है। अगर एज लेंथ ए है तो व्हाट इज एज लेंथ, मान लो ये तुम्हारा सचमुच में इतने डिस्टेंस में रहते ही नहीं है। देखो ये रहा तुम्हारा 2 आटम, ठीक है, ये रहा 2 आटम, ये मैं से यहीं पे बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। सचमुच में ये रहा आटम, और ये अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस रहा ए, तो देखो इसका रेडियस r, इसका रेडियस r, मीन्स इसका जो एज लेंथ होगा, सिंपल क्यूब का जो यूनिट लेंथ होगा, सिंपल क्यूब की यूनिट सेल का जो एज लेंथ है ना, ये रहा ए इक्वल टू 2r। देखो ये रहा r प्लस r, सो दैट मीन्स a इक्वल टू 2r। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। सेकेंड इज योर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल मीन्स FCC। FCC देखो FCC में क्या होता है, FCC में क्या होता है, देखो पहले तो 8 कर्नल में 8 आटम्स होते हैं, 8 आटम्स होते हैं, 8 कर्नल में 8 आटम्स होते हैं, ठीक है। देखो 8 कर्नल में 8 आटम्स होते हैं, और जो 6 फेसेस है ना, वो 6 फेस ये रहा और ये रहा फेस, ये नीचे वाला फेस, ये साइड राइट साइड फेस, ये पीछे वाला फेस, सामने वाला फेस, फेस सेंटर में। देखो अब व्हाट इज द एज लेंथ, व्हाट इज द एज लेंथ, व्हाट विल बी द एज लेंथ A। Here in phase center you see this is the phase center, the particles they touch each other along the phase diagonal, remember this one, this is a phase, this is a phase, this is a phase, bottom phase मैंने ले लिया, यहाँ पे आटम है, this is atom, यहाँ पे आटम है, ठीक है, लेकिन बीच वाला जो आटम है ना, ऐसे ही हम करेंगे, ये कर्नल आटम, ये रहा बीच वाला आटम, फेस वाला सेंटर, फेस सेंटर, ये रहा कर्नल, ये रहा ये रहा, ठीक है, दिस इज फेस, और यहाँ पे एक आटम है, ये रहा, ठीक है। देखो सी इन FCC the atoms present at corner they don't touch each other, the atoms they touch each other through phase diagonal, फेस डायगोनल। देखो तब मान लो ये रहा A, ये रहा A, ये रहा R, ये होगा R प्लस R 2R, ये रहा R, तो क्या होगा, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो मीन्स A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर, ठीक है, और 2A स्क्वायर इक्वल टू 16R स्क्वायर, और A स्क्वायर इक्वल टू 8R स्क्वायर, और A इक्वल टू 2√2R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एज लेंथ है, दिस इज रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द आटम। तीसरा रहा तुम्हारा BCC। देखो BCC में क्या होता है, देखो BCC में क्या होता है, BCC में ध्यान देना 8 कर्नल में 8 आटम्स, 8 कर्नल में 8 आटम्स रहते हैं, और एक आटम तुम्हारा ये जो बॉडी डायगोनल में, देखो बॉडी डायगोनल, ये रहा बॉडी डायगोनल, मीन्स द आटम्स द टच ईच अदर थ्रू द बॉडी डायगोनल, आटम्स टच ईच अदर थ्रू बॉडी डायगोनल। देखो ये रहा बॉडी डायगोनल, ये रहा बॉडी डायगोनल, ये रहा बॉडी डायगोनल, नजर करो, ध्यान दो, ये रहा तुम्हारा एज, ये रहा फेस डायगोनल, ये रहा फेस डायगोनल, ये रहा बॉडी डायगोनल, मीन्स द आटम्स द टच ईच अदर अलोंग द बॉडी डायगोनल। ये रहा R, ये होगा R 2R, ये रहा, मीन्स बॉडी डायगोनल का जो लेंथ है 4R, और इसका तो लेंथ जानते हो आप A, और ये रहा A, तो इसका मतलब होगा ये होगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर रूट ओवर
2a, ठीक है। ये तो बॉडी, ये तरह फेस डायगोनल √2a, ठीक है। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, नहीं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना नहीं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, फेस डायगोनल, ये रहा बॉडी डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू एज स्क्वायर एंड दिस इज योर फेस डायगोनल स्क्वायर। सो 4r, देखो ध्यान से देखो, ये रहा एटम, बार बार मैं कह रहा हूं, द एटम्स टच ईच अदर ओनली एट बॉडी डायगोनल थ्रू बॉडी डायगोनल, ये बात याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी डायगोनल लेंथ क्या है 4r, r प्लस 2r प्लस r, 4r स्क्वायर इक्वल टू ये रहा ए स्क्वायर प्लस ये रहा तुम्हारा फेस डायगोनल, ये रहा ए स्क्वायर, ये रहा 2a स्क्वायर, मीन्स 3a स्क्वायर, दैट इज 3a स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर, और a स्क्वायर इक्वल टू 4/16/3r स्क्वायर, और a इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट, मीन्स रूट ओवर 4/√3 ये बात याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट। 4/√3 इज इट सी द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड ए रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये रहा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के बारे में और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मीन्स हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल, वो जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो यूनिट सेल के अंदर में जो एटम्स हैं, कॉर्नर में है, प्रिमिटिव में, कॉर्नर्स में है, नॉन प्रिमिटिव में, कॉर्नर को छोड़ के और दूसरे जगह में है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानना कि एक यूनिट सेल के अंदर में कितने एटम्स आते हैं, क्योंकि एक क्रिस्टल तो एक यूनिट सेल तो नहीं बनता है ना, कई सारे लाखों करोड़ की तादाद में वो यूनिट सेल्स हैं, ठीक है। इसीलिए हर एक यूनिट सेल में कितने एटम्स जानना बहुत जरूरी है, इसको कहते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में होते हैं, ठीक, एंड ईच कॉर्नर एटम शेयर्स ओनली 1/8 पर यूनिट सेल, ये इसके सिर्फ 1/8 हिस्सा अंदर को रहता है, तो इसलिए 1/8 × 8 टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 1। बट इन फेस सेंटर्ड FCC यूनिट सेल, ध्यान से सुनना, FCC यूनिट सेल में द एटम्स, द कॉर्नर एटम्स टच ईच अदर, कॉर्नर एटम्स टच ईच अदर ओनली थ्रू फेस डायगोनल, ओनली थ्रू फेस डायगोनल, दैट इज वाई द एज लेंथ इक्वल टू 2√2r, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना जब हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन करेंगे ना, ये बहुत ही काम की चीज़ है ए और आर के बीच। आज मैं गजब पर चीज़ बताऊंगा कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेशन करें, सिंपल तरीका बताऊंगा। सारे के सारे स्टूडेंट्स की वही डर है कि वो गलती तो करते हैं उसमें, और डर भी आ जाता है मन में कैसे कैलकुलेशन करें एग्जाम में, अगर उसमें सवाल आ गया तो मान लो कि उनके बीच में एक डर पैदा हो जाता है। आज मैं उसको भी दूर करूंगा, ठीक है, उसको याद रखना। और जो BCC की बात, गजब का बात है, तो एटम्स दे टच ईच अदर थ्रू बॉडी। देखो एक घर है जहाँ बैठो ना, इमेजिन करो, जिस कमरे में बैठो इमेजिन करो, वो 8 कॉर्नर में 8 एटम्स हैं, 4 नीचे 4 ऊपर 4, और बॉडी सेंटर में एक है। तो किसी भी कॉर्नर से, इसी कॉर्नर से उसी कॉर्नर को एक लाइन खींचो, वो बॉडी सेंटर के थ्रू ही जा रहा है। तो ये रहा बॉडी सेंटर R, 2R, R, 4R, और ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो एक फेस सेंटर हो गया, फेस डायगोनल प्लस एज, और ये रहा तुम्हारा बॉडी डायगोनल। बस ऐसे इमेजिन करना, सॉलिड स्टेट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, ठीक है। और देखो नंबर ऑफ एटम्स देखो, और यहाँ क्या हो रहा है देखो, FCC में कई बार भी क्वेश्चन आते हैं, बस बड़ी सिंपल है। कॉर्नर एटम तो 1/8 × 8 कॉर्नर में 8 एटम्स है, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स 8, और पर कॉर्नर 1/8 प्लस फेस सेंटर। देखो किसी भी कमरे के, मान लो ये कमरा का एक फेस है, ठीक है, एक ही फेस के अंदर में अगर एक एटम रहा, एक ही दीवार, ये रहा एक दीवार है, कितने कमरे की दीवार होगा, इसी कमरा का और दूसरा का होगा, ये कमरा और दूसरा कमरा, मीन्स ईच फेस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स, ये घर का होगा और दूसरा मकान का भी होगा, दूसरा कमरा का भी होगा। तो अगर यहाँ पे कोई एटम रहता है सेंटर में, तो 50% यहाँ रहेगा, 50% तो वहाँ रहेगा। सो दैट मीन्स ईच फेस सेंटर एटम कंट्रीब्यूट्स हाफ पर यूनिट सेल। इसके अंदर में तो 50% रहा, और 50% दूसरे यूनिट सेल के अंदर ही रहा है, तो हाफ रहा, तो 6 फेस सेंटर से आया, हाफ × 6, टोटल कितना हुआ 1 + 3 मीन्स देयर आर 4, सो दैट मीन्स Z = 4। ये बात याद रहे।
अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इन बीसीसी में देखो वही 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर देखो, सो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा 1/8 into 8, राइट। और एक एटम इसी यूनिट सेल के अंदर में ही है, उसके अंदर में ही है, तो अंदर मतलब ये पूरी की पूरी उसी का ही है। तो उसको तो कौन, जो अंदर में बॉडी के अंदर में है तो वो तो बॉडी का ही पार्ट हो गया ना, सिस्टम का पार्ट हो गया, तो 1, सो 1 + 1 = 2। ये बात याद रहे, A = 4/√3r याद रखना। नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इज 2, या इसको भी याद रखना। और यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 याद रखना। और इसके साथ साथ इसका जो एज लेंथ और एज और आर के बीच में जो रिश्ता है उसको भी याद रखना। और यहाँ पे A = 2r होते हैं, Z = ये होता है। और एक बार भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और A = 4/√3r, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा 4 नंबर ऑफ एटम्स, Z = 4। ये तीनों चीज़ को ध्यान से समझना और साथ साथ याद भी रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो एक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स X एंड Y। देखो वो क्वेश्चन भी ऐसे ही भी पूछा जाता है, कंपाउंड X और Y 2 एलिमेंट से बना है, X और Y, बड़ी आसान से कर सकते हो। और इट हैज FCC यूनिट सेल, FCC लैटिस लिखा हुआ, मतलब कि आपको तो याद आ जाना चाहिए कि कॉर्नर में और फेस सेंटर में, 8 कॉर्नर में 8 है, फेस सेंटर में, ठीक है। कौन है प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, Y आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, Y it has FCC, Y atoms are present at its corner, while atoms X are present at alternate face center। मीन्स ये Y is at corner, ये कॉर्नर में, और ये ऑल्टरनेट फेस सेंटर में, ऑल्टरनेट फेस सेंटर में मतलब क्या, कॉर्नर में का मतलब 8 कॉर्नर में 8 है, तो नंबर ऑफ Y एटम्स क्या होगा, नंबर ऑफ Y एटम्स क्या होगा बोलो, नंबर ऑफ Y एटम्स = 1/8 × 8 होगा ना, नहीं बोलो। 8 कॉर्नर में सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट है, तो 8 कॉर्नर्स, और फ्रॉम 1 कॉर्नर वी आर गेटिंग 1/8 × 8, 1। सो मीन्स Y नंबर ऑफ Y एटम इज 1। देखेंगे एक यूनिट सेल में जितने नंबर की X और जितने नंबर की Y है वही है फॉर्मूला, वही है कंपाउंड का स्टोकियोमेट्री, ठीक है। अब देखो ऑल्टरनेट फेस सेंटर, देयर आर 6 फेस सेंटर्स है ना, देयर आर 6 फेस सेंटर्स। ऑल्टरनेट मतलब एक ही फेस सेंटर में है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, दैट मीन्स इट हैज, मान लो तीनों को गायब कर दो, तीनों में है, तीनों में नहीं है, तीनों में ऑल्टरनेट, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ऐसे ही, यहाँ पे है, इसमें नहीं है, यहाँ पे है, इसमें नहीं, ऐसे ही। अगर दैट मीन्स 3 फेस सेंटर्स में रहा, अब 3 फेस सेंटर्स, एंड यू नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच फेस सेंटर इज हाफ, और 3 फेस सेंटर से कितना मिलेगा, 3 × हाफ, कितना 3/2। दैट मीन्स नंबर ऑफ X नंबर = 3/2, सो X = 3/2 और Y का नंबर कितना है 1। जो भी तुम्हारा नंबर मिला ना उसको तुम्हारा सब्सक्रिप्ट करके लिख दो, सब्सक्रिप्ट करके लिख दो, यह X 3/2 Y 1 मीन्स इन टोटल यू मल्टीप्लाई by 2 you will get X3 Y 2। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। और सेकेंड, ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स A एंड B, B has FCC स्ट्रक्चर, B has FCC स्ट्रक्चर, कंप्लीट FCC स्ट्रक्चर मीन्स 8 कॉर्नर में और तुम्हारा 6 फेस सेंटर में, और B एटम्स आर, A एटम्स आर एज सेंटर्स, एज सेंटर रखा, देखो ये रहा एज सेंटर, ये रहा एज मीन्स ही दीज आर द एज, देयर आर 12 एजेस, ऊपर 4, नीचे 4 और इस साइड में 4, देयर आर 12 एजेस, ठीक है। एज सेंटर में देखो एक ही एज, कितना कमरा के एज हो सकता है, देखो ये मान लो एक एज है, ये एक ही कमरा है, ये दूसरा का हो सकता है, इसके सामने वाला का और इसका सामने वाला का, मीन्स ईच एज सेंटर, देखो एक एज सेंटर में मान लो एक एज है, यहाँ पे कोई एटम है, ठीक है। ये कितने क्यूब का और कितने कमरा का हिस्सा हो सकता है, देखो ये एक यहाँ रहा और इसके साइड वाला भी एक आ सकता है, ठीक है, दोनों को शेयर करेगा, इसके ऊपर में एक रख दो, इसके ऊपर में रख दो, मीन्स ईच एज सेंटर एटम कैन बी शेयर्ड बाई 4, 1, 2, उसके ऊपर में, इसके ऊपर में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे अगर एज में कोई एटम है तो ये तो इसका ही हिस्सा है, और दूसरा क्यूब यहाँ पे रख लो, ये भी इसका भी बन जाएगा, इसके ऊपर रखो, इसके ऊपर रखो, और 4 मीन्स ईच एज सेंटर एटम इज शेयर्ड बाई 4 क्यूब्स, ठीक है। तो उसका शेयर कितना आएगा पर क्यूब, कितना दिखाई देगा 1/4, ठीक है। आई बात समझ में। एंड ऑल्सो प्रेजेंट एट एज सेंटर, ठीक है,
as face and B atoms are at corner and face center, A atoms are as A centers. देखो तो अगर A atoms आ रहा है तो B नंबर कितना होगा बोलो, B का नंबर कितना होगा, B तब फेस सेंटर में, B तब फेस सेंटर में, फेस सेंटर मतलब 1/8 इंटू 8, 8 कॉर्नर प्लस 6 फेस सेंटर, तो 4 हो गया। A कहाँ पे है, एज प्रेजेंट है एज सेंटर, 1 एज सेंटर कंट्रीब्यूट टू 1/4, 1/4 इंटू देयर आर 12 सेंटर मीन्स 3। सो ए का नंबर हो गया 3, बी का नंबर हो गया 4। सो फॉर्मूला क्या होगा, A3B4। ऐसे ही करना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और तुम्हारे पास जो भी किताब है वो किताब के अंदर देखो बहुत सारे प्रॉब्लम से दिया गया तुमको, उसको भी सॉल्व करना, ठीक है, आराम से हो जाए, कोई बात नहीं। अब पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स मैंने बताया था ना पहले, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अरेंजमेंट दोनों जिम्मेदार है। क्रिस्टल का नेचर कैसा बनेगा, कितना हार्ड होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ये सारे के सारे सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है उसके अंदर में अरेंजमेंट कैसा है। जैसे कि आप जानते हो ये रहा तुम्हारा क्रिस्टल, ये 3 डायमेंशनल है, दिस इज ए लेंथ, दिस इज ए ब्रेड्थ, दिस इज हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कैसे बना है, देखो देखो नीचे देखो, ये पहले एक एटम्स आपने देखो एक लाइन में दे आर अरेंज्ड इन ए लाइन, दैट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। पहले 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट रहा, और ये मान लो एक्स एक्सिस में रखो, पहले एटम्स एक्स एक्सिस में आते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस में आते हैं, तो ये रहा पहला 1 डायमेंशनल। उसके बाद और दूसरे लाइन पे आते हैं, एक प्लेन बनाते हैं, ये रहा नीचे बाद ये एक प्लेन हो गया, उसको कहते हैं 2 डायमेंशनल पैकिंग। पहले 1 डायमेंशनल मीन्स इट गिव्स एज, देन 2 डायमेंशनल इट गिव्स योर प्लेन, and along z axis it gives you a perfect 3-dimensional crystal. So क्रिस्टल का जो पैकिंग होता है ना, वो शुरुआत होता है 1 डायमेंशनल से, देखो 1 डायमेंशनल पैकिंग, देन 2 डायमेंशनल पैकिंग, देन 3 डायमेंशनल पैकिंग। 1 डायमेंशनल से हम जाएंगे 2 डायमेंशनल तक, 2 से जाएंगे 3 तक, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो 1 डायमेंशनल पैकिंग, 1D पैकिंग, 1D पैकिंग मीन्स देखो एटम्स दे आर अरेंज्ड अलोंग एनी डायरेक्शन, मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दीज आर द एटम्स दे आर अरेंज्ड इन अलोंग दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस हो वाई और जेड, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर में दे आर अरेंज्ड साइड बाय साइड। क्रिस्टलाइन मतलब ज्योमेट्रिकली परफेक्टली ऑर्डरली अरेंज्ड। ये रहा तुम्हारा 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट से क्या फॉर्मेशन होता है, एज फॉर्मेशन होता है, इट गिव्स राइज टू एज। देखो ना 1 डायमेंशनली जब पार्टिकल्स अरेंजमेंट होते हैं ना, एज फॉर्मेशन होता है। ये सारे एज, जितने सारे एज देखते हो ना, यही है, यही तुम्हारा एजेस है। ये रहा तुम्हारा एज, ये लेंथ हो सकता है, ब्रेड्थ हो सकता है और हाइट भी हो सकता है, ठीक है। सो 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट गिव्स राइज टू एज ऑफ ए क्रिस्टल, उसे एक एज बनता है। और दूसरा बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ एटम्स दे आर सराउंडिंग ए गिवन एटम एंड फिजिकली इन टच विथ दैट एटम। क्या बताया मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब मैंने सपोज ये रहा ये एटम का मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। what do you mean by coordination number? Means how many other atoms are surrounding this atom and touching each other, touching this atom. कितने एटम्स उसको घेरे हुए हैं और उसको टच कर रहे हैं, घेरे हुए हैं और टच कर रहे हैं। देखो ये और ये दोनों टच कर रहे हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 2। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स सराउंडिंग एटम एंड फिजिकली टच दैट एटम। लेकिन एंड में अगर कोई एंड एटम के बारे में पूछेगा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन तो 1 होगा, एंड एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा और बीच वाले जितने हैं एटम्स होंगे उनका तो 2 ही होगा। इसे 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल से शुरू होता है। नेक्स्ट 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। 2D अरेंजमेंट देखो, 2D अरेंजमेंट क्या है, देखो 2D अरेंजमेंट 2 तरह के हो सकते हैं। देखो पहला फर्स्ट ये रहा अरेंजमेंट, मान लो एक्स एक्सिस में दीज एटम्स आर प्रेजेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरे जो लाइन है ना, ठीक बिल्कुल बिल्कुल उसके नीचे परपेंडिकुलरली नीचे, बिल्कुल नीचे वर्टिकली दे आर प्रेजेंट, वर्टिकली दे आर प्रेजेंट।
वर्टिकली दे आर प्रेजेंट, देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, वर्टिकली दे आर प्रेजेंट, वर्टिकली प्रेजेंट, ठीक है। और ऐसे तरह अगर प्रेजेंट होंगे, इफ द आटम्स आर अरेंज इन दिस वे, उसको क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? देखो किसी भी आटम को टारगेट करो, देखो ये आटम, उसको कितने आटम टच कर रहे हैं, हाउ मेनी आटम्स आर इन टचिंग दिस आटम, किसी भी सेंट्रल आटम को टारगेट में ले लो, मान लो ये मैंने ले लिया, हाउ मेनी, ये रहा, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये चारों जो आटम टच कर रहे हैं ना, उनका सेंटर को जोड़ दो, क्या बनता है भाई, कैसा दिखाई देता है? स्क्वायर, उसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्या कहते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। दूसरा देखो, पहला लाइन सीक्वेंस तो ऐसा ही रहेगा, पहले लाइन में आएंगे, एज फॉर्मेशन होगा। देखो दूसरा क्या आता है, जो फर्स्ट लाइन के जो इसको कहते हैं डिप्रेशन, उसको क्या कहते हैं? डिप्रेशंस। फर्स्ट लाइन का डिप्रेशन में सेकेंड लाइन का आटम्स रहते हैं, देखो सेकेंड लाइन का आटम्स आ जाते हैं डिप्रेशन में, डिप्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है। और इनका डिप्रेशन में थर्ड लाइन आ जाते हैं, और इनका इस प्रकार अरेंजमेंट को, इसी टाइप का अरेंजमेंट को क्या कहेंगे जानते हो? ए ए ए ए, उसको कहते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। देखो इसके सीधा ये नहीं है डिप्रेशन में, इनके डिप्रेशन में ये रहा, ठीक है, और इनका डिप्रेशन में ये आ गया, इनके डिप्रेशन में ये आ गया, देखो, और ऐसे ही करते रहना, देखो इनके डिप्रेशन में ये सब आ जाते हैं। देखो ये रहा अगर ए लाइन, देखो ये तुम्हारा रहेगा बी लाइन, देखो बी में बिल्कुल ये रहा ए, ये रहा बी लाइन, और ये रहा फिर वही ए लाइन आ गया, देखो ए, ये बिल्कुल दे कॉरेस्पॉन्ड टू ईच अदर, और ये रहा बी लाइन, ठीक है। और इसमें किसी आटम को टारगेट कर लो, किसी आटम को देख लो, ये देखो मान लो ये आटम मैंने सिलेक्ट कर लिया, देखो इसको कितने टच कर रहे हैं, देखो ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, इनका सेंटर को जोड़ दो, सेंटर को जोड़ दो, ठीक है, यू कनेक्ट देयर सेंटर्स, इट लुक्स लाइक हेक्सागन, सो इट इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 बिकॉज इट इज सराउंडेड बाई 4 आटम्स एंड दे आर टचिंग ईच अदर, टचिंग दिस आटम हियर, देखो हियर, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, सेंट्रल आटम को 6 आटम चारों तरह से घेरे हुए और टच करें, ओके। 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब क्या? हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन अवेलेबल स्पेस इन यूनिट सेल, मीन्स यूनिट सेल के अंदर में जितना स्पेस अवेलेबल है, जितना मिलता है, और ये जितने एटम्स उसके अंदर में रहता है ना, वो कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कि सारे के सारे वॉल्यूम, तो कितना भी अच्छे तरह से पैकिंग हो, क्रिस्टल के अंदर में कितने भी अच्छी तरह से पैकिंग करो, सारे के सारे वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई नहीं होगा, कुछ वॉल्यूम तो रह जाएगा अनऑक्यूपाइड है, अनयूज्ड होके तो कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो इसीलिए उसको पैकिंग एफिशिएंट जानना बहुत जरूरी है कि हाउ मच स्पेस इज यूटिलाइज्ड, जो एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड दैट यूनिट सेल, हाउ मच वॉल्यूम और स्पेस दे हैव यूटिलाइज्ड। सो पैकिंग एफिशिएंसी का एक बहुत ही बड़ा अच्छा, बहुत आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स जेड, बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। एंड जेड मीन्स नंबर ऑफ एटम्स present in that unit cell into space occupied by the atom by total space of the unit cell into 1000 into 100, percentage means 100. टोटल जेड मीन्स नंबर ऑफ एटम्स, टोटल एटम कितने वॉल्यूम से ऑक्यूपाई कर रहे हैं और टोटल स्पेस कितने ले रहे हैं, और जो यूनिट सेल का टोटल स्पेस कितना, अवेलेबल स्पेस कितना, इनटू 100, वेरी सिंपल फॉर्मूला। और 2 डायमेंशनल में हम क्या करेंगे? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम मीन्स वी कंसीडर इट एज अ एरिया ऑफ एटम इन 2 डायमेंशनल, एरिया ऑफ एटम इन 2 डायमेंशनल, और इन 3 डायमेंशनल यू टेक वॉल्यूम ऑफ एटम, बस वही डिफरेंस है, वही डिफरेंस है। इन 3 डायमेंशनल सिस्टम में हम जो स्पेस ऑक्यूपाइड विद द एटम है ना, उसको वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम मीन से 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ लेंगे तुम्हारा जो पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ एटम कंसिडर करते हैं, और टोटल स्पेस मीन्स टोटल एरिया, मीन्स टोटल एरिया
और इन 3 डायमेंशनल इट विल बी टोटल वॉल्यूम। बस यही अंतर है, टोटल वॉल्यूम। समझ में आई ना नहीं आई बात समझ में? Z इंटू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन आटम मीन्स टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द आटम्स बाय द अवेलेबल स्पेस ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। 2 डायमेंशनल में स्पेस ऑक्यूपाइड बाय आटम मीन्स इस एरिया क्या है, एरिया, बिकॉज इन 2 डायमेंशनल आटम इज कंसिडर सर्कल, 3 डायमेंशनल स्फीयर, ठीक है। और टोटल स्पेस मीन्स टोटल एरिया ऑफ द यूनिटी सेल। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना और समझना, ध्यान से देखना और समझना। अब मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की एफिशिएंसी निकालने जा रहा हूँ, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी निकालने जा रहा हूँ। बहुत सारी किताब में गलत लिखा है, गलत लिखा है। देखो नंबर ऑफ आटम जेड, पहले जेड कैलकुलेशन करना। जेड कैसे कैलकुलेशन करोगे? 2 डायमेंशनल में एंगल अप्रोच होना चाहिए, एंगल अप्रोच। देखो मीन्स ये मान लो मेरा एक ये यूनिट सेल मैंने लिया, एक यूनिट सेल, ये डिफाइन है, ये तो रिपीट हो रहा है, रिपीट होने के बाद इसी डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में रिपीट होगा तो तुम्हारा क्रिस्टल बनेगा यूनिट सेल। देखो मीन्स इसी यूनिट सेल में जितने आटम, देखो ये आटम का कितना हिस्सा यहाँ पे रह रहा है, देखो टोटल कितना है, ये देखो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री एंगल इज रिमेनिंग इनसाइड द यूनिट सेल। ये यूनिट सेल, ये रहा यूनिट सेल, इसके अंदर में 90 डिग्री, इस आटम का 90 डिग्री यहाँ रहा और 90 डिग्री इसका भी रहा, 90 डिग्री इसका रहा, कितने से 360 से। तो Z इक्वल टू क्या होगा, एक ही आटम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा 90 डिवाइडेड बाई 1/360, मीन्स 360 डिग्री से टोटल 360 डिग्री से 90 डिग्री इसी यूनिट सेल के अंदर में रहा, तो कितना होगा 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4, मीन्स 1/4 इंटू 4 मीन्स Z इक्वल टू 1। आई बात समझ में? तो पहले Z हो गया। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन आटम, देखो आटम का तो रेडियस R है, तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ आटम इक्वल टू πr², ठीक है, πr²। और क्या होगा, देखो टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल, टोटल एरिया यूनिट सेल, देखो ये टोटल एरिया, ये रहा, ये तरह तुम्हारा टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या होगा, देखो टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया इक्वल टू πr²। देखो टोटल एरिया होगा पाई, ये तो इसका एरिया, और क्या होगा देखो टोटल एरिया, ये रहा Z। अब निकालना है हमको टोटल एरिया, देखो ये तरह क्यूब जैसा A², ठीक है, टोटल एरिया मीन्स A², A मीन्स A इक्वल टू 2R, 2R मीन्स स्क्वायर मीन्स 4R²। सो एफिशिएंसी क्या होगा, देखो Z इंटू Z मीन्स 1 इंटू πr² बाई डिवाइड एरिया, टोटल एरिया ऑफ दिस यूनिट सेल, A स्क्वायर ना, ये एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर के A², ये लेंथ A मीन्स 2R, R प्लस R 2R, सो क्या होगा 4R² इंटू 100, देखो उसको काट दो, R², तो 78.5%, 78.5%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये हेक्सागन यहाँ पे देखो, यहाँ देखो मान लो ये कि तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा एच शेप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एच शेप में देखो ये रहा तुम्हारा एक यूनिट सेल, मैंने मान लिया एक यूनिट सेल है। देखो यूनिट सेल में कितना 6 आटम्स आर इनसाइड, लेकिन उनका कितना हिस्सा है यहाँ पे, कितना एंगल 120, इसका 120 हिस्सा इसमें, 120 हिस्सा इसमें, 120 हिस्सा इसमें, और एक आटम बिल्कुल अंदर में है। तो 6 आटम्स का कितना हिस्सा है 120 बाई आउट ऑफ 360, आउट ऑफ 360 120 इज प्रेजेंट इनसाइड इनटू कितने नंबर के 6 नंबर की, और एक आटम का 360 डिग्री बिल्कुल इसके अंदर में समा गया है, तो ये रहा, तो कितना होगा, ये रहा 3 और ये रहा 2, सो 1 + 2 = 2 + 1 = 3, सो Z = 3, ठीक है। और देखो Z निकल गया, और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम तो πr², ठीक है, πr²। अब टोटल एरिया ऑफ द यूनिट सेल, टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल मतलब देखो टोटल एरिया क्या होता है, यहाँ पे देखो तुम्हारा, अगर देखो उसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो देखो देयर आर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो 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 एक ही हेक्सागन में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल 2 3 4 5 6, देयर आर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एंड द एरिया ऑफ ईच इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3 बाई एरिया ऑफ ईच इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3 बाई 4a²। कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इसके अंदर में 6 है, तो टोटल एरिया कितना होगा 6 इंटू
√3/4a². So this is the total area for the unit cell. So कैसे हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे? देखो z eta equal to z into the area of one atom pi r², ठीक, डिवाइडेड बाई टोटल एरिया ऑफ द यूनिट सेल. देखो ये एक हेक्सागोनल यूनिट सेल और एक हेक्सागन के अंदर में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, ठीक है. सो 6 इंटू √3/4 ए. देखो एरिया, ये जो ये रहा एज देखो, ये रहा एज, ए मीन्स इसका आर, आधा हिस्सा इसका आर, आधा हिस्सा इसका आर मिलके कितना हुआ 2r. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2r का स्क्वायर, ठीक है. तो r स्क्वायर तो कट जाएगा इंटू 100. एफिशिएंसी परसेंट से निकालते तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देखो इसका जो एफिशिएंसी है 90.6% के आसपास आ जाता है. बहुत ही जबरदस्त एफिशिएंसी. ऐसे आप बता सकते हो. देखो ये दोनों टाइप का अरेंजमेंट में कौन सा अरेंजमेंट बेहतर है, और जो क्रिस्टल बनेगा ना इसी 2 डायमेंशनल, तो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट से ही तो 3 डायमेंशनल बनेगा ना. 2 डायमेंशनल होके तो ही 3 डायमेंशनल की ओर से जाएगा ना. तो बताओ कौन सा एफिशिएंसी ज़्यादा है? अगर 2 डायमेंशनल एफिशिएंसी 90.6% बहुत ही बेहतरीन है, और यहाँ पे कितना है 17%, फिर भी अच्छा है, ठीक है. और ये रहा 2 डायमेंशनल क्रिस्टल सिस्टम और पैकिंग, जिसके बारे में हमने अच्छी तरह से डिस्कस किए. और ध्यान देना कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, यहाँ पे 6 होता है. और पैकिंग एफिशिएंसी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, नीट I8 में इस सारे सवाल से पूछे जाते हैं. मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कि हमारा CHEC में ये सारे क्वेश्चन से कभी आया था और नहीं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है. ज़रूरी बातें मैंने बता दिया कि 90.6% इसका एफिशिएंसी, और इसका रहा 70.8% इसका एफिशिएंसी. बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है. और इसके साथ ये तुम्हारा सेकेंड पार्ट ख़त्म हुआ, और आई होप कि आप लोगों की बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा. और मिलते हैं अगले क्लास में. टिल देन गुड बाय. ओके, टेक केयर.